Good afternoon, friends. I would like to welcome you in this lecture of the Engineering Graphics and CAD. We are in the chapter of orthographic projection, and today we are going to see one more object which we can draw with this orthographic view, orthographic projection. And for that particular purpose, I have provided one diagram in front of you. And that diagram is like a stool type diagram, or we can say that in Marathi, आपला जो पाठ असतो बसायचा, तो पाठ ज्या पद्धतीने असतो त्या पद्धतीची ही डायग्राम आहे. And in this diagram you need to draw, number one, front view, then you will have to draw top view, and you will have to draw sectional left hand side view. While writing all these three dimensions, I have made a mistake. Where I have made a mistake, can anybody tell me? Can anybody tell me where you can find the mistake while writing this? Front view is equal to length into height. Absolutely correct. Front view is length into height. Okay. So if you will see towards this diagram, सेक्शनल LHSV हमें ड्रॉ करना है, यानी कि यहां इस डायग्राम में जो डायरेक्शन दी होगी वो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर कौन सी होगी? ऑब्वियसली दिस एक्स डायरेक्शन विल बी देयर. जब एक्स डायरेक्शन से हम यहां इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है. और ये जो सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है वो मुझे कहां मिलेगा? तो राइट हैंड में मिलेगा. ओके, नाउ वी नीड टू राइट द डायमेंशंस हियर. व्हाट इज द लेंथ of this particular stool, particular diagram? What is the length? 60. Yes, it is 60. Okay, and it is given over here at the top platform. Top platform पे ये जो dimension है पूरी length यहां मैंने दी हुई है. And then what is the height? 30. Yes, 30. absolutely correct. At the extreme top right hand side corner, this 30 dimension I have given. Then we will have to write, we will have to mention. Now length is 60, and what is the width? $40. Yes, it is 40. And here all dimension you have received now, so that you can write down width into height. Width is 40 and this height is 30. Now, as I have suggested to you people, you need to now start preparing the blocks. अब हमें क्या करना है? हमें अब block preparation start कर देना है. Okay, so in this block preparation, this line is x1 y1, and here the line which will give us xy. So write down x, y, x1, y1. And then you will have to draw the parallel lines.
लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. And up and down side of XY line in this way. And you need to draw LHSV. That's why you will have to draw a 45-degree line behind, below the right hand part of your X1, Y1 and XY intersection. तो इस तरीके से आपको पहले ब्लॉक बनाने पड़ेंगे. ओके, नाउ यहां आपका आएगा फ्रंट व्यू, यहां आपका फ्रंट व्यू आएगा, यहां टॉप व्यू आएगा. सो फ्रंट व्यू का जो ब्लॉक है वो है 60/30, लेंथ है 60. तो हम क्या करेंगे, इस 60 पे एक लाइन बना देंगे. ये देखिए इन दिस वे. और 30 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे इस तरीके से. नाउ फ्रंट व्यू का जो ब्लॉक है वो 60/30 का यहां आ गया है. अब मुझे टॉप व्यू का ब्लॉक बनाना है 60/40 का. 60 की लेंथ मैंने मार्क कर दी है ऑलरेडी. अब मैं 40 का जो डायमेंशन है वो 40 का डायमेंशन यहां ट्रांसफर करूंगा इन दिस वे. तो ये 3 ब्लॉक जो हैं वो 3 ब्लॉक यहां बन जाएंगे. अब मुझे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. और फ्रंट व्यू में देखिए यहां मैंने मटेरियल निकाल दिया है, यहां का मटेरियल मैंने ब्लॉक में से कट कर दिया है. तो फ्रंट व्यू में कौन सा पार्ट विजिबल होगा इसका मैं थोड़ा इमेजिनेशन करता हूं. तो आप देख सकते हैं कि जो पार्ट मैं यहां रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं वो जो पार्ट है वो सारा का सारा फ्रंट व्यू में विजिबल होगा. इसका शेप देखिए जरा सा, उल्टे यू जैसा शेप है इसका, या सी जैसे शेप है इसका. ओके, वन मोर डायमेंशन आई नीड टू प्रोवाइड हियर to draw this dimension of 10 mm, and here also the dimension of 10 mm. ये जो लेग हैं इस लेग के डायमेंशन भी देने पड़ेंगे जब मुझे ये ड्रॉ करना होगा. Now I need to draw this much part, so I'll start with the base point. ये पार्ट मैं यहां ड्रॉ कर दूंगा, दैट इज द टॉप एज, बाहर वाली, और यहां टॉप में आने वाली एज मैंने ड्रॉ कर दी है. उसके बाद 10 mm मैं यहां अंदर आ जाऊंगा और 10 mm यहां अंदर आ जाऊंगा. ओके, इस 10-10 mm के जो प्रोजेक्शन हैं वो प्रोजेक्शन मैं नीचे लेता हूं बिकॉज इट विल हेल्प. नाउ जो कट किया है वो किया है 15 mm तक, तो 15 mm तक मैं यहां ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करता हूं.
ये मेरा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। और 15 mm की जो लाइन है वो लाइन मैं साइड व्यू में भी ट्रांसफर करता हूं। इट विल हेल्प। तो ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। यहां मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आई विल प्रोसीड टू कंप्लीट माय टॉप व्यू। मैं अब टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा और टॉप व्यू में आप देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट यहां विजिबल होगा। वेरी सिंपल, दिस ऑल रेक्टेंगुलर पार्ट विल बी विजिबल इन द टॉप व्यू। ये सारा का सारा जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो मुझे टॉप व्यू में दिख जाएगा। सारा का सारा पार्ट टॉप व्यू में मुझे दिखेगा। तो यहां टॉप व्यू में आ जाएगा आपका रेक्टेंगल 60/40 का। इन दिस वे। लेकिन एक बात है, आप जब टॉप से देखोगे तो ये जो कुछ मटेरियल यहां रिमूव किया है, मटेरियल यहां से निकाल दिया है, क्या ये टॉप व्यू में दिखेगा? जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है उस बेंच के नीचे का जो पार्ट है वो टॉप व्यू में दिखेगा? नहीं। नहीं दिखेगा। लेकिन वो वहां है, उतना मटेरियल मैंने वहां से निकाल दिया है। ओके, लेकिन वो टॉप व्यू में विजिबल नहीं है। तो मुझे बताइएगा, जो पार्ट मैं निकाल देता हूं लेकिन वो विजिबल नहीं होता है, वो पार्ट मुझे कैसे दिखाना है? डॉटेड लाइन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई नीड टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। अब ये ऊपर से देखने के बाद कितने mm पे होगा? ये जो डिस्टेंस है ये 10 mm है। तो 10 mm का प्रोजेक्शन भी मैंने यहां ड्रॉ किया है। तो 10 mm पे मैं क्या कर दूंगा, ये डॉटेड लाइन जो है वो हल्के से यहां बना दूंगा। In this way. Similarly, I will draw second dotted line over here. ये डॉटेड लाइन मुझे बताते हैं कि इसके नीचे का जो पार्ट है वो इतना पार्ट रिमूव कर दिया है। एंड हियर नो नीड टू ड्रॉ सेंटर लाइन बिकॉज देयर इज अ नो होल। यहाँ होल नहीं है तो सेंटर लाइन दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू कंप्लीट। नाउ जब मुझे साइड व्यू ड्रॉ करना है तो मुझे सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करना है। सेक्शनल यानी कट किया हुआ। कट किया हुआ यानी ये जो पार्ट है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पार्ट मुझे इस डायग्राम से निकाल के फेंक देना है। तो जो रिमेनिंग डायग्राम होगा, थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन के लिए मैं उसका एक डायग्राम बनाता हूं। शायद जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं इट विल क्लियर योर आइडिया।
तो जो कट किया हुआ पार्ट होगा वो आपको ऐसे दिखेगा, यानी कि इसमें दो रेक्टेंगल नजर आएंगे। हियर देयर विल बी रेक्टेंगल नंबर 1 और ये नीचे का रेक्टेंगल नंबर 2। इस कॉर्नर से जो लाइन पास होने वाली होगी वो कॉर्नर की लाइन आगे के एज को कोइंसाइड होगी, और जब आप कट करोगे तो आपका जो ब्लेड है वो पार्ट 1 को टच करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सेक्शन विच आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, कि जहां आपका ब्लेड टच करता है ऑब्जेक्ट को कट करते समय, उतना जो पार्ट है उतना पार्ट हमें हैचड लाइन से दिखाना है। ओके, तो ये तय हो गया कि यहां सेक्शनल व्यू में मुझे दो रेक्टेंगल दिखते हैं। सो लेट अस ड्रॉ दिस टू रेक्टेंगल्स ओवर हियर। और आप देख सकते हैं कि वो जो रेक्टेंगल है ऑटोमेटिकली यहां दो रेक्टेंगल मुझे प्रोजेक्शन की वजह से मिल गए हैं, टू हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल 14/15 के। और ये जो ऊपर का पार्ट है वहां मैं हैचिंग लाइन दिखाऊंगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन को 45 डिग्री का इंक्लिनेशन करती है। तो ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और सेक्शनल साइड व्यू। ओके, हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. या नाउ वी विल प्रोवाइड द डायमेंशंस। अब हम यहां डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। ये 10 10 60 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद रह गया 40। दस 10 के जो डायमेंशन है वो मैं थोड़ा टॉप व्यू में दे देता हूं। Here it is 10 and 10। तो लेंथ के सारे डायमेंशन हमने यहां दे दिए हैं। जो हाइट के डायमेंशन है वी कैन प्रोवाइड इट इन साइड व्यू। साइड व्यू में हम हाइट के डायमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्टीन 15।
अब रहेगा विड्थ का डायमेंशन, वो डायमेंशन मैं टॉप व्यू में दे देता हूं। इट इज 40। और अगर आपको टोटल हाइट का डायमेंशन देना है तो आप दे सकते हैं। डायमेंशन रिपीट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन जब रिपीट होता है तो ड्राइंग पढ़ने में कुछ तकलीफ नहीं होती है, आसानी होती है। लेकिन अगर डायमेंशन नहीं हो तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए डायमेंशनिंग में ध्यान रखना, रिपीटेशन हो गया तो भी नो इश्यू, बट डायमेंशन दिया ही नहीं है या absent है डायमेंशन, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज फ्रंट व्यू, then top view, and then here you can write your sectional left hand side view. In this way, orthographic projection of such a simple object is completed. Now listen carefully, very important thing. Whatever object up till now I have taken and whatever point up till now we have discussed, those whole points, ये सारे के सारे points या सारे के सारे concept combine करके आपको ऑर्थोग्राफी में वो ऑब्जेक्ट तैयार करके पूछते हैं। ओके, तो ये बात आप सबको समझ लेनी है कि फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा और साइड व्यू में ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। दैट इज द ओनली इमेजिनेशन पावर, and dimensions are given of this 3D object, and by using this technique of preparation of the block and the provided dimension, you need to prepare the orthographic projection. तो इसमें मैंने अब तक almost all conceptual point related with this orthographic projection I have taken it. कि राइट हैंड में पहले ऑर्थोग्राफी में 3 व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो होता है वो हम राइट में ड्रॉ करते हैं, राइट हैंड साइड व्यू जो होता है वो हम लेफ्ट में ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करने के लिए मैं पहले क्या करता हूं कि डायग्राम जिस डायरेक्शन से दी है उस डायरेक्शन के हिसाब से कौन से 3 व्यू मुझे ड्रॉ करने हैं, मैं पहले ये डिसाइड करता हूं। हर व्यू में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, प्रत्येक व्यू मध्ये फ्रंट व्यू आणि टॉप व्यू जो आहे तो आपल्याला कसल्याही परिस्थितीमध्ये काढावाच लागतो। वी नीड टू ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इन एव्हरी कंडिशन, एव्हरी प्रॉब्लेम ऑफ ऑर्थोग्राफी। देन देयर में बी चेंज इन दिस साइड व्यू। तो साइड व्यू में चेंज होगा, और साइड व्यू में कौन सा चेंज होगा कि एक तो आपको ये LHSV बनाना होगा या RHSV बनाना होगा। और LHSV या RHSV कैसे ड्रॉ करना है, इसका फंडामेंटल और सिंपल लॉजिक मैंने बताया है कि अगर राइट हैंड साइड से मेरा हाथ देखिए, राइट हैंड साइड से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको LHSV बनाना है। और अगर आप लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको RHSV बनाना है। ओके, ये बात आप आपके माइंड में फिक्स कर दो। और जब आप डिसाइड करेंगे कि कौन से 3 व्यूज हमें बनाने हैं, उसके बाद आपका एक्चुअल ऑर्थोग्राफी का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्चुअल ऑर्थोग्राफी के वर्क में आपका पहला काम है कि जो 3 व्यू हम निकालने वाले हैं
उसमें हमने डायमेंशन कौन से होंगे ये डिसाइड किया है। फ्रंट व्यू में होगी लेंथ एंड हाइट, टॉप व्यू में होगी लेंथ एंड विड्थ, और साइड व्यू में होगी विड्थ एंड हाइट। तो पूरा डायमेंशन मेजर करना भी एक स्किल है। क्यों स्किल है? क्योंकि आपने इस डायग्राम में देखा कि मैंने टॉप सरफेस का डायमेंशन दिया था, बॉटम सरफेस के बारे में मैंने कोई डायमेंशन ही नहीं दिया था। तो ऐसे केस में आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि टोटल लेंथ कितनी होगी। तो जो सरफेस है लेंथ का, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द अगल बगल सब जगह देख के, कभी कभी डायमेंशन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वन स्ट्रोक में वो नहीं दिए होते हैं, वो डिवाइड करके दिए हुए होते हैं। यानी कि 10 10 40 10, तो 10 40 10 जब दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे डायमेंशन की, लीनियर डायमेंशन की एक सम करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे जो बात बतानी है मैं यहां डायग्राम में आपको दिखा सकता हूं। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, यहां 60 के डायमेंशन देने के बजाय मैं सेम डायमेंशन आपको 10 40 10 ऐसे करके भी दे सकता हूं। और जब 10 40 10 ऐसी डायमेंशन मैं यहां दे दूंगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे इस डायमेंशन में सारे के सारे डायमेंशन की सम करनी है। यहां साइड में भी मैंने पहले 30 डायमेंशन दे दिया है। यह 30 डायमेंशन मैं इस तरीके से भी दे सकता हूं। अंदर की जो डायमेंशन है वो होगी 15, जैसे मैंने पहले दिया था, और मैं यहां सिंपली एक लाइन बना देता हूं और यहां की डायमेंशन दे देता हूं 15। तो आपको टोटल हाइट कैलकुलेट करते समय दिस 15 एंड 15 30 होता है, यह समझ लेने की जरूरत है। यानी कि आपको लेंथ, हाइट और विड्थ ओवरऑल जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज दैट you will have to write those calculated dimension in front of front view, top view and side view. फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यूच्या समोर तुमचं जे दिलेलं डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन तुम्हाला त्या ठिकाणी नोट डाऊन करून ते मार्क करून ठेवायचं आहे, तिथं ते लिहायचं आहे। आणि ते का लिहायचं आहे? बिकॉज दॅट विल हेल्प यू टू ड्रॉ द बॉक्स। ओके, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ये डायमेंशन मालूम होना बहुत जरूरी है। हे माहितीचं असणं अत्यंत आवश्यक आहे। आणि ते एकदा तुम्हाला माहित झालं, एकदा तुम्हाला ती गोष्ट लक्षात आली की त्यानंतर तुम्हाला काढायचे आहेत ते ब्लॉक। आता ब्लॉक प्रत्येकाने काढलेले आहेत, त्यामुळे त्याचं जे मेकॅनिझम आहे ते सगळ्यांना माहित झालेलं आहे। आणि दिलेल्या ब्लॉक मध्ये मग 1 बाय 1 फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू हे जे आहेत हे आपल्याला ड्रॉ करायचे आहेत। फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करत असताना समोरून कुठला पार्ट ऑब्झर्व्हरच्या क्लोज आहे तो पहिल्यांदा काढून घ्या। मग त्याच्या पाठीमागचा, त्याला पॅरलल असलेल्या प्लेनवर जो काही पार्ट आहे तो काढून घ्या। आणि सहसा तुमचा जो ऑब्जेक्ट आहे तो क्लोज असतो, लक्षात घ्या। ओपन ऑब्जेक्ट कधी नसतो। तुम्ही कुठलाही ऑब्जेक्ट बघा ऑर्थोग्राफी मधला, तो क्लोज आहे। हियर यू कॅन सी इट इज अ क्लोज। या सगळ्याच्या ज्या बाउंड्रीज आहेत त्या क्लोज आहेत, लक्षात घ्या। तर तुमचं जे ऑब्जेक्ट आहे ते क्लोज पाहिजे। ते जर कुठं ओपन राहत असेल तर लक्षात घ्या तुमचा तिथं काहीतरी काढायचं राहिलेलं आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्यायला हवं। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर ड्रॉइंग इट, इफ एनी व्ह्यू इज द सेक्शनल वन, जर कुठला पार्ट सेक्शनल असेल तर लक्षात घ्या
त्या सेक्शनल पार्ट मध्ये ज्या ठिकाणी तुमचा पातं ब्लेडचं पातं जे आहे ते पातं त्या ऑब्जेक्टला घासेल तिथं तुम्हाला हॅचिंग लाईन दाखवायच्या आहेत. या डायग्राम मध्ये मी खालच्या रेक्टँगलला हॅचिंगच्या लाईन्स दाखवलेल्या नाहीत. का नाही दाखवल्या? Why I haven't shown the hatched lines in the bottom rectangle? Can anybody tell you? Tell me. मी वरच्या रेक्टँगलला हॅचिंग लाईन दाखवलेल्या आहेत पण खालच्याला दाखवलेल्या नाहीत. का नाही दाखवल्या? Can anybody answer? Yes. कट मिडल मधून केलाय तिथं. Yes, I have cut that particular object from the center. और सेंटर में सिर्फ ये जो ऊपर का रेक्टेंगल है वो ऊपर के रेक्टेंगुलर पार्ट को ही मेरा ब्लेड टच करता है. नीचे ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, यहाँ का मटेरियल निकाल दिया है, वहां सिर्फ हवा है. तो जब मैं नीचे उसको ले जाऊंगा तो वो कुछ भी टच नहीं करेगा नीचे के साइड में, because already there the material which was present over there it is removed. Okay, तो इसलिए जो नीचे का रेक्टेंगल है वो नीचे का जो रेक्टेंगल है वहां मैंने हैच्ड लाइन दिखाई नहीं है. ओके, और एक बात आपको समझनी है कि अगर ऑब्जेक्ट में रिब आ जाए, बहुत कम बार ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर रिब आ जाए और वहां सेक्शनल व्यू हो तो रिब को सेक्शनल मत दिखाइए. बस इतना ही पार्ट आप ध्यान में रखिए. आपको तो कुछ एक्चुअल एग्जाम में ऑफलाइन नहीं होने की वजह से, आपकी एग्जाम ऑनलाइन होने की वजह से कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हाउ टू ड्रॉ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और ग्राफिक्स का स्टडी करते समय मैंने आपको कहा है कि आपको ग्राफिक्स कैसे पढ़ना है. ग्राफिक्स पढ़ते समय आपको उसके जो कंसेप्ट हैं वो पहले समझ लेने हैं, प्रॉब्लम को देखना है, वो कैसे ड्रॉ किया है, उसका जो गिवन है वो पढ़ना है, कैसे ड्रॉ किया ये देखना है, और ड्रॉ करते समय जो मेथोडोलॉजी यूज की है उस मेथोडोलॉजी पे आपको कंसंट्रेट करना है. ओके, जब आपको मेथड्स समझ में आएंगे, टाइप्स ऑफ लाइंस समझ में आएंगे, टाइप्स ऑफ प्लेन्स समझ में आएंगे, आपको सॉलिड्स समझ में आएंगे, प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, कोन क्या है, सिलेंडर क्या है, ये समझ में आएंगे. सेक्शनल प्लेन कैसे होते हैं ये आपको जब इमेजिन होगा, और ऑर्थोग्राफी के जो स्टेप हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें से टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी बातें जब पता चलेंगी तो यू नीड नॉट टू टेक एनीबॉडीज हेल्प टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड कैड. ओके, so this is very much important thing I am telling you. Tomorrow early in the morning at 9:30 a.m. I am going to start the concept of AutoCAD, introduction to AutoCAD. AutoCAD का बस आपको इंट्रोडक्शन है, उस सॉफ्टवेयर के डिटेल्स में कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो काम आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में किया है वो काम करने के लिए कौन से कमांड का यूज करना पड़ता है ये पार्ट वहां है. तो उस पार्ट पे हम 100% कल कंसंट्रेट करेंगे, और वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैं इजी से आपको यहाँ क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका ग्राफिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा. दो बातें का याद मुझे आप सबको दिलाना है. नंबर एक, कल मैंने चैप्टर टेस्ट आपके लिए दिया था, तो ऐसा दिख रहा है कि many people have not solved it, so solve